السلام علیکم. میرا نام پروفیسر راجہ واجد علی ہے اور کرونا وائرس کی وجہ سے ہم نے یہاں یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن میں آن لائن کلاسز کا سسٹم شروع کیا ہے، جو کہ پری فرسٹ ایئر پہلے دن سے جو ہم کام شروع کرتے ہیں وہاں سے ہم نے پہلے دن سے کام سٹارٹ کرنا ہے اور پہلا لیکچر پہلے چیپٹر سے، اور میں آپ کو اسٹیٹسٹکس پڑھانے کے لیے آیا ہوں. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ لفظ اسٹیٹسٹکس جیسے ہی نام آتا ہے یہ فرسٹ ایئر میں ایک نیا سبجیکٹ ہے، اس لیے بہت سے بچوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ یہ کیسا ہے، کیوں ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے. ہم بات کرتے ہیں انٹروڈکشن ٹو اسٹیٹسٹکس کی. اب ہم بات کرتے ہیں انٹروڈکشن ٹو اسٹیٹسٹکس. فرسٹ ایئر کی کلاس ہے اور اس میں ہم اسٹیٹسٹکس پڑھنے جا رہے ہیں. اسٹیٹسٹکس تقریباً ہر بچے کے لیے نیا سبجیکٹ ہے. اس سے پہلے اسٹیٹسٹکس کا لفظ شاید ہی بچوں نے سنا ہو یا پڑھا ہو. عموماً کچھ عرصہ پہلے 10th کلاس میں ایک سبجیکٹ انفارمیشن ہینڈلنگ کے نام سے آپ نے پڑھا ہوگا، وہ اسٹیٹسٹکس سے ریلیٹڈ ہے. اب اسٹیٹسٹکس کو ہم اردو میں شماریات کہتے ہیں. شماریات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شماریات کا مطلب گننا، کاؤنٹنگ، شمار کرنا. جیسا کہ ہم اس دنیا میں آتے ہیں، دنیا میں آتے ساتھ جب ہماری پہلی سانس شروع ہوئی تو پہلی سانس سے آخری سانس تک ہماری ہر سانس شمار کی ہوئی ہے، ہمارا رزق شمار کیا ہوا ہے. ایک بہترین طریقے سے کوئی مینجمنٹ کی جائے ہم اس کو شماریات کہتے ہیں، اور سب سے بہترین شماریات ہمارا رب ہمارے سانسوں کے ذریعے، ہمارے رزق کے ذریعے، ہمارے اعمال کے ذریعے کر رہا ہے. یہ وہی شماریات ہے جو ہم ہر لمحہ گزرتے ہوئے ہم اپنی چیزوں کو اچھے طریقے سے مینج کرتے ہوئے شماریات ہی کر رہے ہوتے ہیں. جیسے اگر ہم کسی میڈیکل سٹور میں چلے جائیں تو میڈیکل سٹور میں ہم اپنی ضرورت کی دوائی جب ہم اس کو رسید ایک ڈاکٹر کی پرچی دیتے ہیں تو وہ 1 سیکنڈ سے پہلے پوری دکان میں بے شمار دوائیوں کے اندر میڈیسنس میں سے وہ جو ہمیں چاہیے وہ نکال کے دے دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر اس انداز سے شمار کر کے اس خوبصورت طریقے سے پریزنٹیشن کی ہوئی ہے میڈیسنز کہ تلاش کرنے میں ذرا برابر بھی وقت نہیں لگتا. اسی طرح کی دوسری اگزامپل، جیسے ہم چلے جاتے ہیں کسی بھی لائبریری میں اور ہمیں کوئی کتاب چاہیے، ہم ایک کتاب کا نام لکھ کے لائبریرین کو دیتے ہیں تو جیسے ہی لائبریرین تک وہ کتاب پہنچتی ہے، اس کا لفظ پہنچتا ہے تو وہ ایگزیکٹ ایک الماری کے پاس جاتا ہے، صرف اسی الماری کو اس کو کی سے کھول کر اور وہاں سے آپ کی ریکوائرڈ بک نکال کے آپ کو دے دیتا ہے. ایسا اس کے پاس کیا طریقہ کار ہے کہ ہزاروں لاکھوں کتابوں میں سے ایک کتاب جو آپ کو چاہیے جا کے اسی کتاب کے اوپر ہاتھ رکھے اور وہ کتاب نکال کے آپ کو دے دے. یہ جو معاملہ، یہ جو طریقہ کار، یہ جو انداز ایک سسٹمیٹک وے میں ہم نے ایک چیزوں کو ارینج کیا، اسی کو اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں، اسی کو ہم شماریات کہتے ہیں. شماریات جیسا میں نے پہلے بھی بتایا، ہمارے پہلی سانس سے لے کے ہماری آخری سانس تک ہر سانس کیونکہ شمار ہو رہی ہے تو ہم شماریات سے، یعنی کہ ہم دوسرے الفاظ میں اسٹیٹسٹکس سے باہر تو جا ہی نہیں سکتے کسی بھی صورت. اسٹیٹسٹکس کی اسمال فارم اسٹیٹس بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں اور پڑھا بھی جاتا ہے، اسٹیٹس. میں نے اسٹیٹسٹکس کو جب اسٹیٹس کی شکل میں دیکھا تو میں نے غور کیا کہ یہ کس چیز کی ایبریویشن ہے. تو مجھے معلوم ہوا ایس فور یعنی جمع کر لو. پھر میں نے ٹی کو دیکھا، ٹی فور
टोटल का मतलब भी इकट्ठा कर लो, जमा कर लो। जब मैंने ए को देखा तो मैंने गौर किया, ए फॉर एग्रीगेट का मतलब फिर इकट्ठा करके उसको तरीके के साथ रख लेना। और फिर दोबारा टी आया जब, तो मैंने देखा कि ये टुगेदर। तो इन सब अल्फाज के मतलब, यानी आपने चीज़ों को इकट्ठा करना है, चीज़ों को जमा करना है, और जमा करने के बाद एक खूबसूरत तरीके से प्रेजेंटेशन देनी है कि देखने वाले को जो चीज़ जहाँ पर चाहिए, जिस वक्त चाहिए, वहाँ से निकाल ले। एक मर्तबा जब मैं बाज़ार से गुज़र रहा था तो फ्रूट जब मैंने देखा तो उसने प्रेजेंटेशन इतनी खूबसूरत की हुई थी कि मेरा इरादा नहीं था घर लेके जाने का, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन देखकर, उसकी खूबसूरती देखकर मुझे रुकना पड़ा। और रुक कर मैंने सोचा, कहीं यही तो स्टैट्स नहीं है। स्टैटिस्टिक्स अपनी चीज़ों को जमा करके इतनी खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करके दिखाना कि अगले इंसान को, सामने से देखने वाले इंसान को एक आसान लगे, और बहुत आसान लगे, और बहुत खूबसूरत लगे। तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है स्टैटिस्टिक्स का, कि स्टैटिस्टिक्स बेसिकली होती क्या है। बेसिक्स में अगर हम देखें तो कोई भी चीज़ जब हम सीखना शुरू करते हैं तो वो अंडरस्टूड है, मुश्किल होती है। जब हम बात करना सीखते हैं तो हम बहुत मुश्किल से सीखते हैं, हमसे बात नहीं होती, हम एक एक लफ्ज़ सीखते हैं, फिर जाके हम जुमला बनाना सीखते हैं। इसी तरीके से किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी काम का जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे होते हैं तो वो अंडरस्टूड है, थोड़ी सी मुश्किल होती है। अदरवाइज स्टैटिस्टिक्स दुनिया का आसान तरीन सब्जेक्ट है। इवन कि मैं ये कहता हूँ कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम स्टैटिस्टिक्स में फेल होना है, और यही खूबसूरत और मुश्किल तरीन काम हमारे तालिबे इल्म बहुत आसानी से करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में बेशुमार आप डायग्राम्स देखते हैं, जैसे कि ये है, ये हमारी प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है कि कौन किस वक्त किस लेवल पर था। अमूमन शुरू में जिन बच्चों ने स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ी होती वो इस तरह की डायग्राम्स देख के डर जाते हैं। उन बच्चों के लिए मेरी नसीहत ये है कि ये बहुत आसान है। जब आप थोड़ा सा आगे चलेंगे, सीखना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे, तो इससे आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, इंतहा से ज़्यादा आसान आपकी ज़िंदगी हो जाएगी स्टैटिस्टिक्स, जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल्स में सिखाया। अब हम बात करते हैं बुक। फर्स्ट ईयर में हम कौन सी बुक पढ़ेंगे? बुक का नाम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स है। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स हम लाहौर बोर्ड यानी टेक्स्ट बुक बोर्ड से भी पढ़ सकते हैं, और एक इससे बहुत ही अच्छी किताब जिससे हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं वो है कारवान पब्लिशर की, मिराजुद्दीन मिर्ज़ा राइटर है, और उसका नाम भी इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स है। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स हम दो किताबों से पढ़ेंगे। एक टेक्स्ट बुक है, उसमें हमारे पास प्रैक्टिस कम है, और प्रैक्टिस ज़्यादा करने के लिए और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के लिए हम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स पब्लिश बाय कारवान पब्लिशर और ऑथर बाय मिराजुद्दीन मिर्ज़ा एंड डॉक्टर अफजाल बेग, ये बहुत पहले की लिखी हुई 1960s से चल रही है बुक, और इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है और बहुत ज़्यादा आपके हर साल के पास पेपर उसमें ऐड होते हैं। हम बात करते हैं कि हमारे पास इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स में टोटल चैप्टर हैं 9। पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, यानी कि बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं कि हमने स्टैटिस्टिक्स को कैसे पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स क्या है। इसमें हमने सिंपल डेफिनेशंस पढ़नी है कि स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं। दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा चैप्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो हम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे कि डाटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, हमने उसको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे हमने उसको आसान बनाना है। दूसरे चैप्टर
प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में दो टॉपिक्स हैं, एक डेफिनेशंस प्लस टैली फ्रीक्वेंसी जो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, और दूसरा टॉपिक भी उसका कुछ टच आपने 10th क्लास में पढ़ा था, जिसमें ग्राफिक्स और सिंपल बार चार्ट, कंपोनेंट बार चार्ट और पाई चार्ट, समथिंग ग्राफ्स से रिलेटेड प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है। नंबर 3 चैप्टर है जी मेजर ऑफ लोकेशन। जो डाटा आप फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में सीखेंगे कि हमने डाटा को कलेक्ट कैसे किया और उसकी प्रेजेंटेशन कैसे की, हमने उसकी लोकेशन तलाश करनी है मेजर ऑफ लोकेशन में कि वो कहाँ पर पाया जाता है, क्या वो डाटा के सेंटर में पाया जाता है, 25% पे पाया जाता है, या कहाँ कहाँ पर क्या क्या मेजर्स हम करेंगे। नंबर 4 चैप्टर आपके सामने मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये जो हम मेजर ऑफ लोकेशन में जो हम एवरेज या लोकेशन को मेजर्स करेंगे, उसकी दोबारा मेजर करने का नाम मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। चैप्टर नंबर 5 बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है और ये है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में हमने क्या करना होता है जनाब, हमने डाटा को अरेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। इंडेक्स नंबर के बाद चैप्टर नंबर 6, ये अमूमन मैथमेटिक्स का चैप्टर है। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का एक चैप्टर जो आप सब बच्चों ने 5वीं 6ठी क्लास से पढ़ना शुरू किया था, वो है बेसिक सेट थ्योरी और काउंटिंग टेक्निक्स। चैप्टर नंबर 7 प्रोबेबिलिटी, एक खूबसूरत चैप्टर जिसकी वजह से मैं आज स्टैटिस्टिक्स का टीचर बन सका। मुझे ये इस कदर खूबसूरत चैप्टर और इतना इंतहाई आसान, अमूमन मार्केट में स्टूडेंट्स ये कहा करते हैं कि प्रोबेबिलिटी बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आज पहले दिन आपको बता रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है। सिर्फ इसको सीखना और समझने की बात है, जिसे समझ आ जाए। प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा आसान टॉपिक आपको और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको सिर्फ समझ के विद इन 2 and 3 लाइन्स में इसका आंसर बना लिया करते हैं। नंबर 8 चैप्टर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, और लास्ट चैप्टर है जी बायनोमियल एंड हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है और बायनोमियल एंड हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, चैप्टर नंबर 8 और 9, ये दोनों लिंक करते हैं प्रोबेबिलिटी के साथ। इसलिए प्रोबेबिलिटी को सीखना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चैप्टर 8 और चैप्टर 9 दोनों का ताल्लुक प्रोबेबिलिटी के साथ जा बनता है। और प्रोबेबिलिटी समझ आने के बाद चैप्टर 8 और 9 करेंगे तो आपको बहुत ही आसान प्रोबेबिलिटी और पूरी की पूरी स्टैटिस्टिक्स बहुत आसान लगेगी, उम्मीद करता हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं जनाब के स्टैटिस्टिक्स जो हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, टोटल मार्क्स हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 200 मार्क्स। पार्ट 1 थ्योरी, पार्ट 1 की थ्योरी का पेपर 85 मार्क्स का, 3 घंटे टाइम मिलेगा आपको, सेम एज इट इज़। जब आप पार्ट 2 तैयार कर लेंगे और दूसरे साल पार्ट 2 की तैयारी करने के बाद फिर 3 घंटे का एक पेपर, और वो भी थ्योरी का होगा 85 मार्क्स का। जब आप पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लियर करके फिर इसके बाद पार्ट 2 के बाद प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का, 1 और 2 इकट्ठा प्रैक्टिकल होगा और वो भी 30 मार्क्स का, और 3 घंटे का प्रैक्टिकल होगा। उसमें आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं और साथ वाइवा प्लस प्रैक्टिकल कॉपी, 30 मार्क्स। अब मेरा ख्याल है कि तकरीबन सब बच्चों को पता चल चुका होगा कि उन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है, और पार्ट 1 में 85 मार्क्स, पार्ट 2 में 85 और प्रैक्टिकल 30 मार्क्स, जो कि सेकेंड ईयर के बाद होगा। अब पार्ट 1 में हम बात करते हैं नंबर डिस्ट्रीब्यूशन की कि 85 मार्क्स हमारे कैसे बनेंगे। इसमें हर सब्जेक्ट की तरह
इसमें भी पहला क्वेश्चन MCQs का होगा, जिसके लिए आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे और टोटल 17 MCQs होंगे। हर MCQs का 1 नंबर और हर MCQs की 4 ऑप्शंस, एक ऑप्शन सही होगी और उस पे आपको क्लिक करना होगा। लिहाजा क्वेश्चन नंबर 1 17 मार्क्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आपको 12 मिलेंगे। आपने अटेम्प्ट उनमें से 8 करने हैं। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और क्वेश्चन नंबर 2 16 मार्क्स का। और क्वेश्चन नंबर 2 में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जस्ट लाइक डेफिनेशंस होंगी। तकरीबन 12 में से 9 डेफिनेशंस होंगी, 3 या 4 न्यूमेरिकल्स शॉर्ट होंगे और वो चैप्टर 1, चैप्टर 3 और चैप्टर 5 से आएंगे। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन होगा। इसमें भी 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और टोटल मार्क्स 16 होंगे। और ये चैप्टर नंबर 2, 4, 6 और 7 से होंगे। 2, 4, 6 और 7 याद रखें कि ये जो मैं चैप्टर्स यहाँ बता रहा हूँ, ये कारवान पब्लिशर्स की बुक है, मिराजुद्दीन मिर्ज़ा की। ये उन चैप्टर्स से रिलेटेड मैं बताऊँगा आपको। चैप्टर नंबर 2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, चैप्टर नंबर 4 मेजर ऑफ लोकेशन, चैप्टर नंबर 6 सेट थ्योरी एंड काउंटिंग टेक्निक्स एंड चैप्टर नंबर 7 प्रोबेबिलिटी, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 ही लिखा हुआ है लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन आपको टोटल 9 मिलेंगे, उनमें से आपने 6 करने हैं और 6 जब आप करेंगे तो हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 12 नंबर टोटल इस क्वेश्चन के होंगे और ये चैप्टर 8 और चैप्टर 9 से लिए जाएंगे। ये आपको मैंने क्वेश्चंस वाइज थ्योरी पेपर जो पार्ट 1 में आप करेंगे उसको डिस्कस हम कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं कोई से, और हर लॉन्ग क्वेश्चन में 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। और जिस क्वेश्चन को आप सिलेक्ट करेंगे उसी क्वेश्चन के दोनों पार्ट करने हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 5 का आप पार्ट ए कर लें और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी करें और आप कहें कि आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ऐसा नहीं होगा। आपने क्वेश्चन नंबर 5 शुरू किया है तो दोनों पार्ट उसके करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अमूमन ज़्यादातर क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट ए चैप्टर नंबर 2 से या फिर चैप्टर नंबर 3 से आया करता है। चैप्टर नंबर 2 से वो कोई ग्राफ दे देगा या फिर सिंपल आपसे कहेगा कि आपको कोई 15-20 वैल्यूज देने के बाद उसकी टैली और फ्रीक्वेंसी कर लें और उसके सिंपल बार चार्ट या हिस्टोग्राम जस्ट लाइक इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है। और पिछले कुछ सालों से वो चैप्टर 2 के साथ इस पार्ट में चैप्टर 3 को भी डाल देता है कि यहाँ पर चैप्टर 3 का कोई एक क्वेश्चन दे दे और बी पार्ट तो कन्फर्म चैप्टर 3 का ही होता है। लिहाजा क्वेश्चन नंबर 5 तैयार करने के लिए हमें चैप्टर नंबर 2 और 3 के न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे तरीके से करने पड़ेंगे। अगर ये चैप्टर 3 से ही पूरा बन जाता है तो फिर बच्चों के लिए बहुत आसानी हो जाती है। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 से ही इसका बी पार्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर से एक पार्ट बनेगा और चैप्टर नंबर 7 प्रोबेबिलिटी से एक पार्ट बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट
चैप्टर नंबर 8 से और क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट भी चैप्टर नंबर 8 से ही होगा। लिहाजा चैप्टर नंबर 8 हमारे लिए बहुत ही अहम चैप्टर है और ये चैप्टर 8 चैप्टर 7 करने के बाद बहुत आसान लगता है और चैप्टर 8 से मुकम्मल एक क्वेश्चन। और इसी तरह जो लास्ट क्वेश्चन है वो है जी क्वेश्चन नंबर 9, इसका चैप्टर नंबर 9 का ए पार्ट और चैप्टर 9 ही इसका बी पार्ट। हम चैप्टर 8, 9, चैप्टर 4, चैप्टर 3 ये ऐसे चैप्टर हैं जो हमें पूरा क्वेश्चन हमें पेपर में दे सकते हैं। इनके न्यूमेरिकल्स को बहुत ध्यान से करेंगे और बहुत समझ के करेंगे और ऐसा करेंगे कि हम डिसाइड करके जाएं कि हमारी तैयारी कहाँ तक है और वहाँ जाके हमने क्या करना है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था स्टैटिस्टिक्स के हवाले से प्लस स्टैटिस्टिक्स के पेपर के हवाले से। पार्ट 2 जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह ही का ही पेपर होगा और उसमें सिर्फ चैप्टर्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे, बाकी सेम एज इट इज़ इसी पैटर्न पे इसी मार्क्स स्कीम्स के साथ पेपर 185 मार्क्स का। और ये जो आपके टोटल 5 सवाल हैं, इनमें से कोई से 3 सवाल करेंगे, हर सवाल 8 नंबर का होगा। इसका मतलब हुआ कि एक पार्ट 4 नंबर का है जी। एक पार्ट जब 4 मार्क्स का होगा, 2 पार्ट 8 नंबर के हो जाएंगे और 8 नंबर अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 24 नंबर बनते हैं। लिहाजा 24 नंबर का ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है। अब हम आगे अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो लेक्चर स्टार्टिंग हमारी है वो है स्टैटिस्टिक्स की हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के स्टैटिस्टिक्स कहाँ से आई, स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, स्टैटिस्टिक्स पहली मर्तबा किसने इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया। लिहाजा आप कोई भी किताब पढ़ लें, कहीं से भी स्टैटिस्टिक्स को देखना शुरू करेंगे तो जो लफ्ज़ स्टैटिस्टिक्स है वो ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेटस, STATUS, एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ स्टेटस और एक इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, स्टैटिस्टा। ये 2 लफ्ज़ ये बेसिक्स हैं जहाँ से हमारा सब्जेक्ट, हमारा लफ्ज़ स्टैटिस्टिक्स ड्राइव हुआ। इन दोनों अल्फाज के मायनी वो है जी, क्या मायनी है, वो है स्टेट। स्टेट किसे कहते हैं और पॉलिटिकल स्टेट एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी रियासत। पुराने वक्तों में अगर हम बात करें रियासतें हुआ करती थी और रियासतों में हुक्मरान जो हैं वो इस अंदाज से उसकी रियासत बड़ी हुआ करती थी जिसके पास साजो सामान ज़्यादा है, जंगी साजो सामान और हर तरह का साजो सामान ज़्यादा है। और वो कैसे पता चलेगा कि कौन सी सियासत, कौन सी रियासत सबसे बड़ी है, वो जब हम उनकी जंगी साजो सामान, उनके जब वो घोड़े कितने थे, उनके पास असला कितना है, जिसके पास जितनी ज़्यादा असला, हाथी, घोड़े, इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी, वो जो रियासत हुआ करती थी वो सबसे पावरफुल रियासत होती थी। जैसा कि आज के दौर में भी हम देखते हैं जिसके पास एटम बम है, जिसके पास असला ज़्यादा है, और ये सारी बातें हम काउंट करके, शुमार करके मालूम हो सकता है। तो लफ्ज़ स्टेटस और स्टैटिस्टा, इन दोनों अल्फाज के मीनिंग्स हैं पॉलिटिकल स्टेट, एक सियासी रियासत, या फिर आजकल हम आसान अल्फाज में गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। शेक्सपियर ने एक लफ्ज़ स्टैटिस्टिक इन स्पेलिंग्स के साथ STATIST स्टैटिस्टिक्स ही पढ़ा गया है इन हिज ड्रामा हैमलेट 1602 में शेक्सपियर ने भी स्टैटिस्टिक्स इन स्पेलिंग्स के साथ ड्रामा हैमलेट में इस्तेमाल किया। एक जर्मन यूनिवर्सिटी में एक राइटर थे गॉटफ्राइड, उन्होंने स्टैटिस्टिक्स इन स्पेलिंग्स के साथ STATISTIK स्टैटिस्टिक
کا لفظ استعمال کیا. یہ ایک رائٹر تھے اور انہوں نے ایک کتاب تھی پولیٹیکل سائنس آف ڈفرینٹ کنٹریز. اس میں انہوں نے ایک جرمن یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے 1749 میں اسٹیٹسٹکس کے ان الفاظ کے ساتھ اس کے میننگز بتائے گئے کہ یہ پولیٹیکل سائنس ہے. یعنی کہ پہلے ہم نے پڑھا پولیٹیکل اسٹیٹ, اب 1749 کی بات کہ انہوں نے جرمن یونیورسٹی میں ایک پروفیسر صاحب نے پولیٹیکل سائنس آف ڈفرینٹ کنٹریز اسٹیٹسٹکس کے میننگز بتائے کہ یہ پولیٹیکل سائنس ہے اور مختلف ممالک کی. وال ہوپر 1771 he was a writer, Englishman, used a word statistics. یہ جن الفاظ میں جن سپیلنگز میں آج کل ہم اسٹیٹسٹکس یوز کرتے ہیں, ان سپیلنگز میں پہلی مرتبہ 1771 میں وال ہوپر نے اسٹیٹسٹکس کو یوز کیا. انہوں نے ایک کتاب تھی ایلیمنٹری یونیورسل ایڈکشن, اور اس میں اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہوئے لفظ اسٹیٹسٹکس لکھا. ان دس بک, اس کتاب میں اسٹیٹسٹکس کو ڈیفائن کیا گیا ہے. کیا کیا گیا ہے؟ ایسے ڈیفائن کیا گیا ہے ایز اے سائنس. یہ ایک سائنس ہے دیٹ ٹیچ اس, جو ہمیں ٹیچ کرتی ہے what is the political arrangement of all modern states of the known world. جو دریافت کی ہوئی دنیا ہے اس میں پولیٹیکل ارینجمنٹ کیسے کی جائیں. ہسٹری آف اسٹیٹسٹکس میں جیسا کہ ہم بات کرتے ہیں, ایک گریٹسٹ کنٹریبیوشن ہے اسٹیٹسٹکس سوشل سائنس بنانے کے لیے سر فرانسس جولٹن, جو کہ 1875-1911 who were discover percentiles. کرل پیئرسن ایک اور سائنٹسٹ ہے, اسٹیٹسٹیشین ہے, 1822 سے 1936 to develop the theory of regression and correlation, also work chi-square and goodness of fitting. یہ تمام ٹاپکس ہیں اسٹیٹسٹکس کے. آر اے فشر 1923 developed a very useful method of analysis of variance, in short way ANOVA, and suggest the important techniques to modern statistics. اس نے بہت سی suggestions دیں جو آج ہم modern statistics میں یوز کرتے ہیں. ہسٹری آف اسٹیٹسٹکس میں میں کچھ باتیں ایسی کہنے جا رہا ہوں جو کہ آپ کو شاید بہت اچھی لگیں. Nowadays, آج کل کے دنوں میں ماڈرن اسٹیٹسٹکس اپلائیڈ ویریز فیلڈ آف لائف. جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ اسٹیٹسٹکس سے ہم باہر جا ہی نہیں سکتے. اسٹیٹسٹکس پہلی سانس سے آخری سانس تک شمار کیے ہوئے ہیں. ہم ہر چیز کو خوبصورت طریقے سے کرنا چاہتے ہیں, لہٰذا بہت سی فیلڈ ایسی ہیں, بلکہ اپلائیڈ ویریز فیلڈ آف لائف, لائف کی تقریباً ہر فیلڈ میں یوز ہوتا ہے. اے پرسن ہیونگ دا نالج آف اسٹیٹسٹکس, اگر کسی بندے کے پاس اسٹیٹسٹکس کا نالج ہے تو وہ بندہ کیسا ہوگا؟ اے بیٹر پالیسی میکر, وہ ایک بہترین پالیسی میکر ہوگا, اور اے بیٹر ایڈمنسٹریٹر, اور وہ ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر ہوگا. یہ آپ دو باتیں ایسی میں نے ہسٹری آف اسٹیٹسٹکس میں اپنے پاس سے کچھ ایڈ کی ہیں جس سے انسان اسٹیٹسٹکس پڑھنے کے بعد ان دو باتوں پر عمل کرتے ہوئے بہت اچھا پالیسی میکر اور بہت اچھا ایڈمنسٹریٹر ہو سکتا ہے. اسی طرح ایٹ دا بگننگ آف دا 20th century, William Gosset was developed the method of the decision making based on a sample set of data. 20th century میں statistics نے بہت ترقی کی. ایون کہ آپ نے ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور سے ایک کولڈ ڈرنک کی بوتل کو سلیکٹ کرنا ہے, اٹس مین ڈیسائیڈ کرنا ہے,
تو یہ ڈیسیژن میکنگ آپ کو کون سکھائے گی؟ وہ ہے جی اسٹیٹسٹکس. آپ نے مارکیٹ سے جا کر اگر ایک گاڑی اپنے لیے سلیکٹ کرنی ہے، آپ نے مارکیٹ سے ایک کار لینی ہے، کسی بھی کام میں ڈیسائیڈ کرنا ہے، تو ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ آپ کو اسٹیٹسٹکس جس انداز سے سکھائے گی اس انداز سے شاید ہی آپ کہیں اور سے سیکھ سکیں. اور ڈیسیژن میکنگ, William Gauss said, developed the theory 20th century. During the 20th century, several statisticians are active in developing new methods, theories and application of statistics. اور آج ہم 21ویں صدی میں تو ہر اس ریسرچ کرنے والے کو پی ایچ ڈی اور ایم فل کی ڈگری دی جاتی ہے جو ایک نیا میتھڈ، نئی ٹیکنالوجی، نیو تھیوری یا نئی اپلیکیشن آف اسٹیٹسٹکس جو شخص ہمیں لا کے دے گا اسے ہم ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگری ملتی ہے. اسٹیٹسٹکس بہت خوبصورت سبجیکٹ. اس سے انسان سیکھتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے تھے، کیسے اپنے زندگی گزاریں. اسٹیٹسٹکس انسان کی زندگی کو بہتر سے بہتر اور بہتر سے بہتر کرنے کے لیے آپ کی زندگی میں آئی. بچوں، آج ہم نے پہلا لیکچر اسٹیٹسٹکس فرسٹ ایئر کا ہم نے جیسا کہ آپ نے کمپلیٹ دیکھا ہوگا، پڑھ بھی لیا ہوگا. اس میں ہم نے اسٹیٹسٹکس کو سیکھا کہ اسٹیٹسٹکس کسے کہتے ہیں. انٹروڈکشن ٹو اسٹیٹسٹکس ہم کس کتاب سے پڑھیں گے. اس میں ہم نے بات کی کہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے کہ پیپر کیسے آئے گا، پیپر کی مارکس اسکیم کیسے بنے گی، کون کون سے چیپٹر سے کیسے یہ سارا کام کرنے کے بعد آج کے لیکچر میں ہم نے ہسٹری آف اسٹیٹسٹکس جو کہ شروع سے لے کے آج تک ہم اسٹیٹسٹکس کو ڈیولپ کرتے یہاں تک پہنچے، ہم نے اس لیکچر میں کمپلیٹ کیا ہے ہسٹری آف اسٹیٹسٹکس. بہت خوبصورت طریقے سے ریسرچ کرنے کے بعد ایک ایک چیز، ایک ایک پوائنٹ آپ کے لیے الگ کلیکٹ کر کے آپ کو سکھایا گیا ہے. امید کی جاتی ہے کہ یہ آپ کے بہترین مستقبل کے لیے زندگی میں آپ یہ مکمل لیکچر یاد رکھیں گے اور اسی طرح ہمارے ساتھ رہیے گا جیسے ہم ساتھ آگے چیپٹر وائز اور لیکچر وائز ہم چلتے جائیں گے. بہت بہت شکریہ. اب ہم کل نیا لیکچر نئے پوائنٹس اور نئے ٹاپکس کے ساتھ آئیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.